पूरा है मोदी का इजराइल वाला बयान। शशि थरूर ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। राजघराने से राजनीति तक का सफर, आम आदमी से मोहब्बत के बाद तलाक और अब वसुंधरा राजे का विकल्प। चुनावी अभियान को प्रियंका गांधी ने शुरू किया। मंडल में की जन आक्रोश रैली, शिवराज सरकार पर बोला हमला। डिंपल यादव ने भाजपा पर बोला हमला। केंद्र और प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल। अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला। डिप्टी सीएम पर भी किया कटाक्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां इजराइल और हमास की जंग को लेकर दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है, तो वहीं कुछ मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ का समर्थन फिलिस्तीन को है। कांग्रेस पार्टी भी बयान जारी कर फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर का कहना है कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन अधिकारों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी का बयान किसी भी तरह से इस मुद्दे का व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। As I understand it is concerned, we will continue studying the situation closely. There will be more statements that we'll issue as the situation evolves, but we will never lose sight of the fact that on the whole what we want is justice and peace for everyone. We are not taking a one-sided view. If you say that the BJP ministers are accusing us of taking a one-sided view, many on the other side are saying that the Indian government has taken a one-sided view by only condemning the attack on Israel and standing in solidarity with Israel, but forgetting some of Israel's misdeeds in the occupied territories. So we are saying we will not forget anything. We will keep the big picture in mind. And as a country that has responsibly stewarded India's foreign policy for more than 6 decades, we have some sense of what is the right thing to do, to take into account the wishes of all our people. We are a country which is itself diverse, it is plural, there are many views within our country, and any of us who are on WhatsApp or whatever are getting these multiple views. It is not as if it's a black and white situation. There are enough Israelis who are writing that there is a certain level of responsibility on their government side to solve the fundamental problem. And there are many Indians who feel very passionately that the principal injustice over the last 75 years has been done to the Palestinians who were displaced from their lands by the creation of Israel. Never forget that 1948, the United Nations resolution created 2 states. Only one state exists, Israel. The Palestinian state has never really come into being. Yes, we now recognize the Palestinian Authority as a sort of state, but it's a state without full control of its territory, with no army, no control of its borders, no full sovereignty in the sense that the Israelis enjoy. And I think we should really have to work to that ultimate. Correct. I think that, I won't use a word like masterstroke, because that's been misused too much by people praising the BJP Prime Minister, people in the BJP praising their own Prime Minister. So no masterstroke on our side. All we are thinking of is what is the need in terms of justice in our country for people. Rahul Gandhi pointed out famously in Parliament that of the 90 secretaries to the government of India, only 3 are OBCs. Why is that so? I mean, these are real questions that the government has to answer and has no answer for. Instead, they're attempting a polarization narrative, which is itself damaging for our social harmony. Communal relations in our country had been in a rather good place until this whole narrative attacking the Muslim community for misdeeds of emperors 300 years ago, 400 years ago, for which now our Muslims are being made to pay a price, attack on them for their way of living, for their food habits, for everything else. And on top of that, we are seeing a situation where, as you were pointing out, political weaponization of religion for polarization purposes has become a feature of the BJP's politics. So that's not healthy. And I think it's not a bad idea to remind people that there are other ways of looking at our society, not just in terms of one big religious cleavage between Hindus and others, which frankly has never been the Congress view of the country, but rather to look at it as a snapshot of also economic and social deprivation and discrimination suffered by large numbers of our people. And therefore, if we can do a proper census, which would involve social and economic factors as well,
not only find out which caste people belong to, but what they're earning, what opportunities they have, we will find that there may well be a significant correlation between marginalization and caste. There may be a significant correlation between opportunities and economic prosperity on the one hand and caste background on the other, in which case we need affirmative action programs. So we are looking at this saying, at a time when even Mr. Modi likes to boast about giving benefits to certain castes, let us know the exact numbers. Otherwise, if you can just invent your own numbers and give benefits as you wish, that's not particularly just. And बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं दिया कुमारी को बीजेपी ने विद्याधर नगर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। राजस्थान की सियासत में उन्हें कोई बड़ी भूमिका देने की चर्चा है और सांसद दिया कुमारी को बीजेपी ने राजधानी जयपुर के तहत आने वाली विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। अभी वह राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद है। वहीं सियासी हलकों में पूछा जा रहा है कि क्या अब दिया कुमारी ही वसुंधरा राजे की विकल्प बनेगी या बीजेपी का चुनावी पैंतरा है। सभी में इतना उत्साह है, मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे यहाँ से विद्याधर नगर से प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए रण शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। पार्टियों ने अपने अभियान का आगाज कर दिया है। इस क्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार में आम आदमी को परेशान किया है, उनके अधिकारों को छीना गया है। शाह जी, श्री रघुनाथ शाह जी, श्री हृदय शाह जी, श्री दलपत शाह जी, श्री टंटिया मामा जी, रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी, अवंतीबाई लोधी जी और रानी फूल कुंवर जी को मेरा नमन। ये एक ऐसी धरती है जहां इतने सारे वीर, इतने सारे महापुरुष रहे हैं। यहाँ आपकी एक बहुत खास संस्कृति है। आते वक्त मैं सोच रही थी कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। मुझे याद है मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि दुनिया से सबसे बढ़िया संस्कृति है, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति से प्रेम सिखाया जाता है, आपको प्रकृति की सुरक्षा करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है और प्रकृति पर निर्भर आप एक सादा जीवन जीते हैं। अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्मठता के आपके असूल हैं और पारंपरिक हुनर और कौशल के सहारे आप अपना जीवन चलाते हैं। साथ साथ प्रकृति को आप समृद्ध रखते हैं और मजबूत रखते हैं। देखिए, मैं अभी मणिया चौगान में गई थी। वहां पे मैंने पहली बार देखा ऐसी जगह को और आप सबकी श्रद्धा उस जगह से जुड़ी है, वहां पे आपकी आस्था जुड़ी है। आदिवासी आस्था के गौरव का केंद्र है। मैं वहां गई तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब हम यहाँ चुनाव के समय आते हैं
और हम आप सब से बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, घोषणाएं करते हैं, तो एक तरह से हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे जो हम बातें यहाँ पे आपके सामने हम कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान जाएगा। तो आज इसी भावना से मैं आपके सामने खड़ी हूं। आपने, कई वक्ताओं ने इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं, तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है, जो सिर्फ मेरी शक्ल उनकी पोती होने के नाते नहीं है, और वो गहरी बात ये है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। भरोसा इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे, तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना, और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूँ आपसे, वो सच बात हो, वो सही बात हो, और वो आपके लिए ही बात हो, जो आपको आगे बढ़ा पाए, और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि सपा सांसद डिंपल यादव ने बुधवार को जहां भाजपा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं डिंपल यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल है। आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। सवाल आ रहा है, और जहां आकस्मिक कार्यों से लोगों की मृत्यु हो रही है, और जहां सरकार किसी भी तरह की सुविधा और ना ही किसी भी तरह का सपोर्ट कर रही है लोगों को, तो हम जितना हमसे हो पा रहे हैं हम उतना कोशिश कर रहे हैं लोगों की सहायता करने का। जन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जयंती भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में उनकी अनुमति चाहते हैं कि मजबूर होने के बाद हम थोड़ा हंगामा कर रहे हैं, अपराध कर दिया उन्होंने। क्योंकि लोकनायक जिनके वो जाने गए हैं, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, क्योंकि वो एक समाजवादी लीडर थे, एक क्रांतिकारी लीडर थे, और एक सच्चे राष्ट्रवादी नायक थे। तो मैं समझती हूँ जो समाजवादी पार्टी द्वारा जो जेपी इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है जयप्रकाश नारायण जी का, तो ना तो ये लोग, और ये समाजवादी पार्टी के पैसों से नहीं बना, ये जनता के पैसों से बना है, और ये जनता के समर्पित करने के लिए बना है, जिसकी जनता जाने कि हमारे देश के लीडर्स कैसे थे, हमारे देश के नेता कैसे थे, और उनसे एक हमें इंस्पिरेशन मिले, उनसे युवाओं को एक इंस्पिरेशन मिले, और जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं वो जान पाए और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पे चल पाए। तो भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि जो सच्चे
क्रांतिकारी लोग थे, जो सच्चे राष्ट्रवादी लोग थे, जो सच्चे समाजवादी लोग थे, जिन्होंने देश के लिए लड़े और जो देश को सही दिशा दिलाना चाहते हैं। तो इस तरह की छोटी हरकतें कर एक बहुत ही निश्चय स्तरीय एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन से लड़ाई हुई है, इसी वजह से जहां पूरे देश में इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वहीं उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा दलित का जो अलायंस है, मैं समझती हूँ भाजपा वाले असली तौर पे पीडीए अलायंस से घबराए हुए हैं। सांसद जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उन्हें ओबीसी याद नहीं आया, अब ओबीसी याद आ रहा है। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मजबूती के साथ डिमांड रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आज हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी ओबीसी महिलाएं, माइनॉरिटीज की महिलाएं का हक और सम्मान और अधिकार की बात नहीं हो रही है। ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि सब लोग, पूरा देश आगे बढ़े और सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े। ये देश में बंटवारा करने की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं और देश की जनता को एक ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहाँ पे लोग भय में जिए, जो काल्पनिक है, जो सच्चाई नहीं है। गठबंधन के आपके सहयोगी कांग्रेस, पहले गठबंधन के सहयोगी जो कांग्रेस वाले हैं, पहले ये भाजपा वाले पप्पू कह के राहुल गांधी को नामित करते हैं। अब तो उनको थोड़ा रावण की परिभाषा देती है, तो क्या समझा जाए? रावण ने तो साम्राज्य स्थापित किया था, ये गठबंधन इकट्ठा होकर मोदी को जो मूलभूत के जो सवाल थे, जहां हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहां वो रोजगार देने में विफल रही है, जहां वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो इनकी जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज है, जिस तरह रेलवेज के साइड में जो ज़मीनें हैं, इन सबको बेच रही है, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहां उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। मुख्य चुनाव यादव के खिलाफ एनडीए मुकदमा दर्ज कराना जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फैलाकर मूर्ति पे माल्यार्पण करने, क्या ये सही है? क्या ये इनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोजर चलाती है लोगों के घरों में, किस रूल के तहत ये बुलडोजर चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। मुख्य चुनाव आयोग तो राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जयप्रकाश नारायण की जयंती की अनुमति न मिलने के कारण जेपीएनएनआईसी का गेट फाड़ने के बाद अखिलेश यादव गुरुवार को गोमती नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क पहुंचे। अखिलेश यादव ने डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के संकल्पों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में समाजवाद को और मजबूत करने की बात कही। भ्रष्टाचार और संविधान की संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने भी समाज को और देश को एकजुट और एक साथ चलने के लिए सब क्रांति का पाठ पढ़ाया। उन सिद्धांतों को लेकर के नेताजी और हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। इस समाज की समाज संपन्न हो, शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग आगे आए और उनको हक अधिकार मिले। आज भी जब हम डॉक्टर लोहिया को याद करते तो ये भी याद करें, एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। आज संविधान पे हमला है और संविधान जिस समय खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आजादी छिन जाएगी, कानून छिन जाएगा।
और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रास्ते पे समाज और देश को ले जा रही है। आज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसे डॉक्टर लोहिया का रास्ता, समाजवादियों के रास्ते पे चल करके ही समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। जिस तरह से आपको माल्यार्पण ये तमाम संस्थाएं जहां हम खड़े हैं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का पार्क है और पुराने साथियों को याद होगा कि नेताजी से लेकर के उस समय के समाजवादी लोग यहाँ पर आए थे और इस पार्क का शुरुआत और जेपीआईसी का शिलान्यास हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। आखिरकार क्या कारण है? एनडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा जीवन जयप्रकाश जी ने जिस तरीके से जिया, हर चीज उनकी वहां कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, ये ही जेपीआईसी, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? जिस तरह से लगातार जैसे ये सामने चीजें आई उसके बाद तमाम तरह के विरोध शुरू हो गए। आप अगर ये बताते लोहिया पार्क में ना आने देते आज, तो हम और आप कैसे आते? केवल हमने बाउंड्री नहीं चढ़ी या गेट पे हम ही नहीं गए, हम अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे कि मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप भी लांग गए उसको, आप भी छलांग मार गए। तो अगर एफआईआर हम पे होगी तो तैयार आप भी रहो, एफआईआर आप पर भी होगी। लेकिन एनडीए ये समझे अपना और सरकार ये समझे कि भ्रष्टाचार छिपा लेंगे इससे। अरे जिनको रख रखाव से लगाव नहीं, पेड़ पौधों से लगाव नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे उनसे? और फिर सरकार कौन है? सरकार कौन है? ये सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब देंगे हम लोग क्या, जिन्होंने अस्पतालों का सत्यानाश कर दिया? आप अभी चलिए लोहिया अस्पताल, अभी चलिए सिविल हॉस्पिटल, अभी चाहिए किसी अस्पताल में अगर एक भी गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो बता दें। आज मैं जाऊंगा रसूलाबाद, समाजवादियों ने जो सीएससी में लिफ्ट लगाई थी, मैं आज चेक करूंगा कि वो लिफ्ट चलती है कि नहीं चलती है। याद कीजिए सीएससी। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।